This session is Kausal Board to Career Counseling. Now, these are the two new initiatives taken by CBSE as per the guidelines of NEP 2020. Today, we are going to discuss what is career counseling in the schools, what are Kausal Board in the school, and how these two are interlinked. That is more important, how these two things are interlinked. That is very important that we have to focus. Okay, that we have to focus. Always remember this thing. Okay, what we are going to do today, we will be talking about a lot, but before that, I will talk something about EduTree. EduTree is an organization which is located in Gurgaon. We are working from various cities. We are working for teachers training. We are working for career counseling in the schools. We are working for stock market training for various groups, and we are working for financial literacy training for school and college students, teachers, and various groups. This financial literacy training is absolutely free of cost to all the school because we do this with the association with NCFE and which provides us assistance. So it is free of cost to all the schools. So any schools who want financial literacy training, that will be free of cost to all the schools. Okay. Now what we are going to cover? We are going to cover today NEP 2020. I'm repeating. If I'm telling NEP 2020, that does not mean I'm going to have a lecture on NEP 2020. Today we are going to have what NEP 2020 says about career counseling and Kausal Board. Second thing, NCF 2023, again the provisions of NCF 2023 on Kausal Board and career counseling. Then curricular goal and competencies for Kausal Board, the projects, different projects, what we are supposed to take, and the timelines which are given. Then there is a talk about Kausal Mela or career fair in the schools, and then the career counseling skills in the teachers which is required. So these all things we are going to discuss, and we will have a lot of question and answers at the end. First of all, from where I have taken the things, whatever I'm going to tell you, it is right or wrong, I don't know. I'm going to give you the documents issued by Government of India through different platforms. So I am giving you the content of that only. So please remember, if something is being changed in future, it can be changed. Many things are being changed. So please remember that. What is there in the public domain today, I'm going to discuss that only. I have used the document NEP 2020, NCF 2023, the school education part, NCERT Kausal Board books issued for class 6, 7, and 8. And only 2 days back, NCERT has issued draft syllabus for class 9th. NCERT has issued draft syllabus for class 9th. That also I have used. Then NCERT implementation guideline I have used, and two very important circulars. One circular of 2024 related to skill labs in the school. Second circular issued by CBSE on 19th January, only last month. And Central Board of Secondary Education, the training manual of master trainers for Kausal Board. These documents I have used for today's training. Okay. Now, this is very important part. Now, if you read this para of NEP 2020, what does it say? Please remember this. Please remember this. What does it say? Very important thing. It says, according to National Education Policy, the development of vocational capabilities will go hand with the development of academies. First, earlier what happened? Academics were different thing and vocational were different thing. Those who were going to vocational studies, we try to assume, हम कहते थे उसने पढ़ाई छोड़ दी है. Now he is not doing studies. It was the concept in India for last many years. Those who are going for any of the vocational courses, हम मानते थे बच्चा पढ़ने में वीक है, अब ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ये बच्चा पढ़ नहीं पाएगा या पढ़ने की स्थिति में नहीं है. That is the reason he will be leaving studies and he will be going for vocational courses. That was the concept
being in the society or in the education system for many years in India. But now it is not like that. Now it is saying कि पढ़ाई और वोकेशनल स्टडीज साथ साथ चलेंगे, एक ही प्रीमाइसेस में चलेंगे. And there was a target that 50% of the bachas should be what we say that given exposure for vocational education till 2025, which could not be achieved, but we are trying our best, country is trying our best, systems are trying our best, whatever we can do. Next very important thing from NEP 2020. First, vocational education will begin from class 6 onward. Vocational education will begin from class 6 onwards. Second important thing, the stigma. I told you in the very beginning कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है तो वो vocational education करेगा. No, it is not like that. Vocational education and normal education both have been given equal importance now. Equal importance. Another thing, very important, now vocational education is not only school is going to do something. School with collaboration with different parts of the society. Different part of the society will run this curriculum in the school. In the school. Next, concept आया bagless days. Bacha will be coming to school, bacha will be doing something, and bacha will be going back. Bacha will not be studying, but they will be learning. Studying and learning, these are two different things. So bacha will be learning, they will come without bags, without books, they will do something, they will learn, and they will go back to it. Now, another very important thing, integration of vocational education with academics. Integration of vocational education with academics. That is very, very important. Very important in this policy. कि vocational education अलग कुछ नहीं होगा और पढ़ाई अलग कुछ नहीं होगा, दोनों को इंटीग्रेट करना, दोनों को मिला के चलाना. That is there. And this is the line which is written in NEP 2020, helps students make informed choice of subject and vocational specialization in class 11th and 12th. मैं इस लाइन से क्या कहना चाहता हूं कि अगर आप वोकेशनल एजुकेशन को, अगर आप कौशल बोध को सही से नहीं चलाएंगे तो फिर आपके स्कूल में हर बच्चा साइंस लेगा और हर बच्चा जेई देगा. गलती आप करेंगे और बच्चे को दोष देंगे. अगर आप हर बच्चे को आईसीटी दे देंगे, अगर आप हर बच्चे को पता चलेगा कि एआई दे देंगे, चलो जी हो गया वोकेशनल एजुकेशन मेरे घर में स्कूल में, तो फिर हर बच्चा वैसा ही करेगा जो आज कर रहा है. तो दैट इज द रीजन, प्लीज फॉलो द वोकेशनल एजुकेशन कंसेप्ट गिवन एज इट इज. एज इट इज. इफ यू वांट टू हैव डेमोक्रेटाइजेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, careers, courses in your school. Let's see this. Now this stage, if you have seen the stage concept, सबने देखा होगा 5 साल पहले आया हुआ. Why I want to show you today? This VE starts from middle school. In your foundation stage 1 and stage 2, there is no vocational education. In preparatory, there is also no concept of vocational education. ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर की बात है, but there is no different concept कि अलग से कोई सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है. But from middle school, if you say, there is VE, vocational education, compulsory from middle school, that is class 6, 7, 8. Then 9, 10th, again it is compulsory VE. VE is compulsory. In 11, 12, it is optional. Those who want to take, they should take, they can take, they should be given. Those who do not want to take, they should not be given. I am repeating again, foundation पे नहीं है, preparatory पे नहीं है, middle में compulsory है, secondary stage 1 में compulsory है, secondary stage 2 में optional. Optional है, नहीं है नहीं, optional है. Those who want to take, they should be given. That is the concept, that which classes we are going to follow vocational education as per NEP 2020 stages. Now I am moving to this. Now if total subjects have been divided into 4 groups in NCF 2023. This is page now taken from NCF 2023. I have specifically written the page number also so that कि आप NCF खोल के उसको देख सकें.
देख सकें, तो here all the subjects have been categorized into 4 groups. And this vocational education is the part of group 2. Vocational education is the part of group 2. ग्रुप 2 की स्पेशलाइजेशन है, ये मैं अभी बता रहा हूं, आगे भी बताऊंगा, साइड पे आएगा। ग्रुप 2 वाले सब्जेक्ट्स का बोर्ड नहीं होगा। जो भी सब्जेक्ट ग्रुप 2 में होंगे उसके बोर्ड्स नहीं होंगे। आगे आएंगे स्लाइड्स, आई विल शो यू दैट साइड, बट व्हाई आई एम शोइंग यू इट इज पार्ट ऑफ ग्रुप 2। Now, Group 1 languages, Group 2 art education, physical education, vocational education, Group 3 IDA and social sciences, Group 4 science and mathematics. Now, Group 2 में सिंस वोकेशनल एजुकेशन है तो वोकेशनल एजुकेशन पढ़ाना है 6 में भी, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी होगा। यानी बोर्ड क्लास में देयर विल बी कंपल्सरी वोकेशनल एजुकेशन, बट there will be no board for this subject because it is the part of group 2. Okay, now I am moving to next part. Now what is this Kausal board or vocational education? Let's go through few points as per the draft issued by NCERT. First, very important thing, work centered knowledge, skill and values. 3 चीजें इन्होंने दिखा है। नॉलेज भी देना है बच्चे को, स्किल भी देना है बच्चे को, साथ में वैल्यूज देना। स्किल सेंटर्ड नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। पढ़ाना नहीं है, सिखाना है, कराना है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आपने कुछ पोट्री पढ़ा दिया, एआई पढ़ा दिया, आईसीटी पढ़ा दिया, कोई बुक पढ़ा दिया, उसकी वर्कशीट करा दिया। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बच्चे को कराना है। मैंने देखा बच्चे स्कूलों में एक बुक है जी, कंप्यूटर के बच्चों को करा दिया, उसका एक्सरसाइज करा दिया, हो गया जी कंप्यूटर एजुकेशन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको बच्चों को उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल कंपिटेंसीज फॉर लाइवलीहुड। ऐसा इसका एक स्कीम है कि आगे चल के बच्चों को लाइवलीहुड के लिए हेल्प करेगा एक स्टेप पे आके। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्निटी ऑफ लेबर, if you go through NEP also, NCF also, the recent document issued draft syllabus by CBSE also, everywhere they have used the term dignity of labor. हम इंडिया में लेबर को कहते हैं ना, उस तरह से हम डिग्निफाई नहीं करते। दैट इज द रीजन हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है। दैट इज द रीजन हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है। प्लीज हमें बच्चों को ये सिखाना है। नेक्स्ट इज another very important thing. I was taking a session in the school and the teacher says कि सर हम अपने स्कूल में कारपेंट्री करा रहे हैं या प्लम्बिंग करा रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स करा रहे हैं, तो पेरेंट्स आके कह रहे हैं ये क्या करा रहे हो हमारे बच्चे को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर ओनली द वेज। by this ways you are not making these bachas carpenter or plumber. You are not making these bachas. You are teaching them communication, you are teaching them teamwork, you are giving them the skills of problem solving. ये सब चीजें आप सिखा रहे हैं। These are the tools. आप बच्चों को प्लम्बर नहीं बना रहे, आप बच्चे को कारपेंटर नहीं बना रहे, इस बात को मान लीजिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कौशल बोध के थ्रू हम स्कूलों में कारपेंटर बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। वो एक स्किल है जिसको, उस टूल को यूज करना है। बच्चे काम करते करते एक टीम में काम करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट करेंगे, चीजें सीखेंगे, टीम वर्क सीखेंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ दिस कौशल बोध। कौशल बोध कहीं नहीं कहता कि हम यहाँ पे किसान बना रहे हैं या कारपेंटर बना रहे हैं या प्लम्बर बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी। तो पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज कौशल बोध। Next very important thing, you have to integrate this Kausal Bodh with other subjects. You have to integrate it with science, math, social science, maybe somewhere in the languages also. ऐसा नहीं है कि कौशल बोध एक टीचर को दे दिया, हाँ जी टीचर आपका ये सब्जेक्ट है आप पढ़ाइए, ऐसा नहीं लिखा हुआ। आपको देखना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट जो आपने चूज किया, आई विल गो ऑन डिटेल ऑफ दैट। वो प्रोजेक्ट कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स करा सकते हैं, कहां पे उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है। तो आपको सब्जेक्ट के साथ यू हैव टू इंटीग्रेट दिस कौशल बोध। कौशल बोध अलग से कोई सब्जेक्ट बना के कौशल बोध का टीचर अपॉइंट कर दिया, ऐसी गलती एटलीस्ट 6, 7, 8 में तो बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। You have to integrate this Kausal Bodh with other subjects. That is very important. Then authentic work with productive outcome.
मैं एक स्कूल में काम करता था, मैं नहीं बताना चाहूंगा स्कूल का नाम। मेरे को पता चला कि गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट बनाने वाला पर्सन है, जिसका साल का 20 लाख का बिजनेस केवल उस स्कूल के एक प्रोजेक्ट से होता है, क्योंकि हर बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना होता है उस तरह से रिलेटेड। तो ऐसा ना हो, अनलेस अनटिल समथिंग प्रोडक्टिव इज कमिंग, यू आर नॉट सपोज टू डू कुछ भी कि हाँ कुछ कर रहे हैं, सजा दिया, फोटो खींच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ कौशल बोध। बच्चा खराब बनाए, बच्चे गलतियां करें, इट्स ओके फाइन। होता क्या है, हमें स्टेज पे सबसे अच्छा दिखाना है, इसलिए हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे बस मार्केट से बना बना के ला रहे हैं। नो, वी आर नॉट सपोज टू डू दैट। हमें ऐसा नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सीबीएसई ने, एनईपी ने आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द सोशल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट, लोकल रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू चूज द प्रोजेक्ट। यू हैव टू चूज द प्रोजेक्ट। इट इज नॉट द प्रोजेक्ट गिवन बाय सीबीएसई कि आपको यही करना। You can choose the project as per your बच्चा, your parents, your economic situation, your social situation, your local circumstances, maybe the weather, maybe the area, जो भी आपको देखना है उसके हिसाब से you can choose the project. Very important, this aim देखिए क्या कहता है, careers, entrepreneurship and employment, उसमें हेल्प करेगा कहीं जाके ये बच्चे को। जो आज आप 6 से कराएंगे, दैट विल हेल्प द बच्चा इन हिज और हर करियर, दैट विल हेल्प द बच्चा इन हिज और हर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो बहुत 6 क्लास से आपको इसको लिंक करना है इन सम फ्यूचर थिंग। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम कवरिंग द करिकुलर गोल्स ऑफ मिडिल स्कूल इशूड बाय एनसीईआरटी, सो दैट कि आपको समझ में आएगा कि इस सब्जेक्ट में है क्या। अगर आपको करिकुलर कोर्स थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट में है क्या, क्यों पढ़ाना है, क्या सिखाना है इसमें बच्चों को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कहता है, इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन वर्क। काम करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, इस काम करने के लिए मैं आपको अभी सेशन दे रहा हूं, इसके लिए व्हाट इज नॉलेज रिक्वायर्ड एंड व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड। ये दोनों काम को इस कौशल बोध के थ्रू सिखा देना है आपको। बस यही कौशल बोध है। सपोज आई एम टेकिंग अ वर्कशॉप, ये यही वर्कशॉप, हाउ टू टेक वर्कशॉप, व्हाट टू पुट इन द पीपीटी, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू टॉक, ये तो दैट नॉलेज एंड द स्किल्स, ये आपको सिखा देना है बच्चों। लेट्स मूव। फिर कहता है इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ चूजन फॉर्म ऑफ वर्क। जो फॉर्म ऑफ वर्क बच्चे ने चूज किया है उसको अप्लाई कैसे करेगा, अप्लाई करना है, केवल उसका कंटेंट नहीं जानना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वॉल्व्स वैल्यूज। मैंने पहले भी कहा था कौशल बोध इज मोर रिलेटेड टू वैल्यूज, सोसाइटी, कल्चर, इंडियनाइजेशन, आवर ओन इंडियन, बीइंग प्राउड, बीइंग इंडियन, उससे रिलेशन है इसका कौशल बोध का। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें ध्यान रखना है कुछ भी करते समय, कुछ भी सेलेक्ट करते समय। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल इन होम बेस्ड टास्क। घर में बच्चा प्रेस कैसे करेगा, खाना कैसे बनाएगा, कुछ भी जो घर का अपना काम है, बैग कैसे पैक करेगा, वो वॉशिंग मशीन कैसे चलाएगा, रिसोर्स कैसे मैनेज करेगा, वॉटेवर होम बेस्ड टास्क में इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कौशल बोध, जो हमें समझना है, जो हमें जानना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी दिस competencies. What are the competencies required in कौशल बोध? आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल स्कूल। मैं आज मिडिल स्कूल को ही कवर कर रहा हूं, बिकॉज अभी सेकेंडरी में मींस 9th-10th में अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आई एम कवरिंग द मेनली द मिडिल स्कूल। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाइज एंड यूजेस द टूल्स फॉर प्रैक्टिस। सीजर्स कैसे यूज करना है, पेचकस कैसे यूज करना है, हथौड़ी कैसे यूज करना है, मे बी पेन कैसे यूज करना है, लैपटॉप कैसे यूज करना है, डेस्कटॉप कैसे यूज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अप्रोचेस टास्क इन अ प्लान एंड सिस्टमैटिक मैनर। आपको प्लानिंग करने कितना समय लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, ये प्लानिंग करना बच्चे को सीखना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटेन एंड हैंडल्स मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स इन फॉर द रिक्वायर्ड एक्टिविटी। उसे पता होना चाहिए कौन से मटेरियल को कैसे हैंडल करना है। आई गिव यू एग्जांपल,
सब्जी में नमक कितना डालना है, सब्जी में नमक कितना डालना है, ये एक स्किल है। कपड़े धोते समय हमें वॉशिंग पाउडर कितना यूज डाल करना है, मशीन में कितना डालना है। तो हाउ टू हैंडल दिस थिंग, बच्चों को नहीं पता, आज के बच्चों को नहीं पता। ये सिखाना, यही है कौशल बोध, यही है कौशल बोध। इसी को प्रोजेक्ट के फॉर्म में अभी हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, ये हमें जानना है। हमारी मम्मी को पता होता था चीनी खत्म होने वाली है, और 5 दिन पहले ऑर्डर कर देते थे। आज कई बार चीनी खत्म हो जाती है, उसके बाद हम ब्लिंकिट ब्लिंकिट ढूंढने लगते हैं, पता नहीं कई बार ब्लिंकिट आता है कई बार नहीं आता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेज करके रखती थी हमारी मम्मी। दैट जो आज पढ़ाया जाता है किताबों में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो हमारी मम्मी पहले से करके रखते थे। एक बड़ा डिब्बा होता था, एक छोटा डिब्बा होता था, बड़े डिब्बे में से छोटे डिब्बे में डालते थे, उसको यूज करते थे, बड़े डिब्बे में खत्म होने वाला है, उससे पहले ऑर्डर हो जाता था, उससे पहले चीजें आ जाती थी घर में। तो दैट वाज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो दैट इज हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत अच्छी चीज जो इसमें बताई जा रही है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वोकेशन इन द वर्क ऑफ वर्क। अपने काम में इसको कैसे यूज करना है, जब भी बच्चा अगर आगे जॉब में जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है, तो वहां पे कैसे इसका यूज कर सकता है। देन अप्लाई स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है, उसको एप्लीकेशन पार्ट में जाना है अपने एरिया में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखेंगे, इवेल्युएट एंड क्वांटिफाई द एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल। जिस भी काम को कर रहा है उसे पता, जैसे ये सिल्क का कपड़ा है, ये कॉटन का कपड़ा है, ये प्लास्टिक है, ये स्टील है, ये कॉपर है, नहीं पता। 10th क्लास के बच्चे को हम कई बार दे देते हैं एक मटेरियल, तो उसे ये नहीं पता कि ये स्टील है या ये कॉपर, नहीं पता। नहीं, तो ये चीजें सिखानी है बच्चों को थ्रू दिस। नेक्स्ट आगे कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज नोटेड, क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस पार्ट विच इज C3.1। यहां पे कौशल बोध आपको समझ में आएगा कि कौशल बोध प्लम्बर बनाने वाला काम नहीं है, कौशल बोध इलेक्ट्रीशियन बनाने वाला काम नहीं है, कौशल बोध किसान बनाने वाला काम नहीं है। वो उन सबको यूज करना है। क्या कहता है, डेवलप द वैल्यूज वाइल इंगेजिंग इनटू द वर्क, अटेंशन टू डिटेल। ये बच्चे को सीख कैसे चीजों पर कंसंट्रेट करे, समझे, ठीक है। परसिस्टेंस एंड फोकस, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, इम्पैथी, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, विलिंगनेस टू डू फिजिकल वर्क। सोए रहते हैं बच्चे, वीडियो देख के पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिजिकल वर्क नहीं करना है। दिस ऑल थिंग विल बच्चा लर्न थ्रू कौशल बोध। These all competencies बच्चा will learn through कौशल बोध। मैं बार बार एक वर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं 2-3 स्कूलों में गया तो मुझे एक फीडबैक मिला जो समझ में आया कि सर पेरेंट्स कहते हैं ये बच्चों को क्या करा रहे हो, क्योंकि शायद हम पेरेंट्स को ये समझा नहीं पा रहे कि हम प्लम्बर नहीं बना रहे। बच्चों को इस बात को आपको समझाना पड़ेगा। दैट थिंग यू हैव टू टेल द पेरेंट्स, यू हैव टू ड्यूरिंग योर ओरिएंटेशन। नाउ न्यू सेशंस आर कमिंग, तो आपको ओरिएंटेशन में बातें बतानी पड़ेंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही बतानी पड़ेगी उनको, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, अप्लाइज द एक्वायर वोकेशनल स्किल्स एंड नॉलेज इन होम सेटिंग। पहले भी कही था, मैंने आपको दिखाया था, घर में इसको यूज करना, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो करा रहे हैं स्कूल में थ्रू कौशल बोध, वो अपने घर में कैसे उसको यूज करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इन कौशल बोध देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क हेयर। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्क हेयर इज, कहता है वर्क विद लाइफ। वर्क विद लाइफ में एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, फिर देखेंगे ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स के बारे में जो भी चीजें हैं वो सब आपका आएगा वर्क विद लाइफ। दूसरा है हमारा वर्क विद मशीन एंड मटेरियल। मशीन एंड मटेरियल में जितने भी आपका कारपेंटर एक्टिविटी है, आईसीटी है, आईटीसी जिसे कहते हैं, फिर आपका आपका जो कहेंगे प्लम्बिंग है, ये सारा चीजें जो आएंगे ये सब आपका मशीन मटेरियल। ऑटोमोबाइल है, एरोनॉटिकल में जा सकता है बच्चा, कुछ कुछ भी जो भी मतलब मशीन मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब आ सकती हैं। मे भी समझ आप उसको टाइलिंग वायरिंग से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, टाइलिंग से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं, इसका मतलब उसको टाइल लगाना नहीं सिखाते हैं। हो सकता है कि आप उसके थ्रू बच्चों को एरिया पढ़ा रहे हैं, एरिया के में, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये उसको कई बार होगा हाँ टाइल लगवा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बच्चा हमारा बड़ा होकर टाइल लगाने वाला बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो
मैथ्स की किताब में पढ़ाते हैं कि इतने बाई इतने का कमरा है, उसमें इतने टू के इतने का टाइल है, कितना स्क्वायर टाइल आएगा, उसको हम करके दिखाएंगे, उसको हम करके दिखाएंगे, सो दैट कि बच्चा सीखेगा। वहां पे टाइलिंग कराना है। इसका पेरेंट्स को अगर आप बताओगे कि हम तो सीमेंट से बच्चों को टाइलिंग सिखा रहे हैं, तो पेरेंट्स तो जो आपको 2 लाख रुपए महीने में या साल में देता है, वो आपसे लड़ाई करेगा, करेगा ही करेगा। आपको इसको समझाना पड़ेगा कि आप क्या करा रहे हो, उसका पर्पज क्या है। I am moving to next. Next, they are talking about work with human services. Work with human services. What it says कि जी आपको जो एंटरटेनमेंट है, ब्यूटी पार्लर है, आप मे बी रिलेटेड टू मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सारी आपका ह्यूमन सर्विसेज में आ जाएगा। somebody has raised the hand. I promise I will take each and every question at the end. I will take each and every question at the end. Now ये मैंने पेज लिया है 452, 452 ऑफ एनसीएफ 2023। ध्यान से देखेंगे मिडिल स्टेज में और सेकेंडरी स्टेज में व्हाट इज रिटन हियर, very important thing which I wanted to focus. That is the reason I have taken the screenshot of that page. क्या कहता है, at this stage the skill for work are to be focused. काम करना सिखाना है बच्चे के अंदर, काम करने का ललक सिखाना है। ये नहीं कि कारपेंटर बनाना है, प्लम्बर बनाना है, इलेक्ट्रीशियन बनाना है या इंजीनियर बनाना है, नहीं भाई, काम करना पड़ेगा, काम किए बिना काम नहीं चलेगा। दैट एटीट्यूड हैव टू बी बिल्ट अप इन द बच्चा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कहता है 3 प्रोजेक्ट्स कराने हैं, वो अभी मैं डिटेल में उसमें जाऊंगा यहाँ पे। और प्रोजेक्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलायन होंगे, जो आप सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होंगे, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, साइंस से पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस से पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होंगे। नाउ इफ यू गो टू क्लास 9 10 10 सेकेंडरी स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, वहां पे क्या कहता है, यहां पे फिर आपको 6 कराने हैं, टोटल 6 कराने हैं। एंड कौन से 6 कराने हैं, एनएसक्यूएफ का लेवल 1 एंड लेवल 2 अचीव करना है। प्लीज देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज एनएसक्यूएफ, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। वहां से जाके जो भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं उसका लेवल 1 एंड लेवल 2 अचीव करना है आपको कौशल बोध में इन क्लास 9 एंड 10th। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक चीज और अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनेबल स्टूडेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस इन ग्रेड 11 एंड 12। इनेबल स्टूडेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस इन ग्रेड 11 एंड 12। आपको कौशल बोध को यूज करना है एज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन, सब्जेक्ट सिलेक्शन इन क्लास 11th एंड 12th। ये आपको ध्यान रखना है, इसको आपको अलाइंड करना है उसी तरह से, बच्चों को बता के रखना है कि यू आर डूइंग दिस 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 एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर एप्टीट्यूड, वी विल सी विच सब्जेक्ट्स यू शुड टेक इन क्लास 11th एंड 12th, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड में कितने मार्क्स आ गए। प्लीज ये गलती नहीं करनी है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, दीज आर द एग्जांपल्स गिवन इन पेज नंबर 450 ऑफ एनसीएफ 2023। व्हाट प्रोजेक्ट्स यू कैन टेक इन क्लास 9 10th, in class 6 7 8। these are only examples, there are more examples given in the कौशल बोध books, I will go on that also। ये एग्जाम जैसे सॉइल मैनेजमेंट करा सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट करा सकते हैं, एप्टीट्यूड करा सकते हैं, हेल्थ केयर करा सकते हैं, एथिकल्स करा सकते हैं, टेलरिंग, कारपेंट्री, लाइफ स्टॉक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक, ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर। These are the examples given in NCF 2023। Depending upon, I'm again telling, the social economic situation of your school, of your locality, आपको चूज करना है कौन से प्रोजेक्ट्स बच्चों को देने हैं। ये फिर अगेन एग्जांपल है कि आप 9th में जैसे आपने एग्रीकल्चर दिया, 10th में बच्चों को गार्डनिंग दिया, 9th में आपको प्लम्बिंग दिया, 12th में आपने कारपेंट्री दिया, 9th में आपने ब्यूटी एंड वेलनेस दिया, 10th में आपने नर्सिंग केयर दिया। फिर उसमें क्या क्या कराना है, दैट इज गिवन एग्जांपल अगेन पेज नंबर 450 ऑफ एनसीएफ 2023। आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर। ये मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, बट आई एम शोइंग यू एवरीथिंग इज देयर इन द डॉक्यूमेंट, क्या क्या चीजें आप बच्चों को करा सकते हैं, कैसे। जैसे कहता है गार्डनिंग में अगर आप कराते हैं तो बच्चों को क्या कराना है, गार्डनिंग टूल्स, फेमिलियरिटी विद यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द टूल्स। फिर कहता है टेक्निक्स ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। फिर कहता है डीलिंग विद वीड्स, डीलिंग विद पेट्स। तो ये आपको चीजें आपको सिखाया गया है, ये सब चीजें कि भाई पेस्टिसाइड्स को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, और ये सारी चीजें बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताना है, ये ठीक है। आगे बढ़ते नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आई एम रिपीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है विच आई हैव टेकन फ्रॉम हैंडबुक
हैंडबुक गिवन बाय एनसीईआरटी कि कैसे तीन प्रोजेक्ट। देखिए, वर्क विद मशीन से आपको तीन प्रोजेक्ट कराने हैं, वर्क विद मटेरियल से आपको तीन प्रोजेक्ट, मशीन मटेरियल से तीन कराने हैं, लाइफ फॉर्म से तीन कराने हैं, एंड आपको ह्यूमन सर्विसेज से तीन कराने हैं। कैसे कराने हैं ध्यान रखिए। जब बच्चा सिक्स्थ में आएगा, सिक्स्थ में कौशल बोध की बुक है, कौशल बोध की बुक में मशीन से रिलेटेड दो है, वहां पे मशीन एंड मटेरियल से, लाइफ स्किल्स से दो हैं, और ह्यूमन सर्विसेज से दो हैं, यानी सबके छह हो गए टोटल। लेकिन बच्चे को करने तीन है, कोई भी तीन बच्चा कर सकता है, ध्यान रखना है। लेकिन उस तीन में से एक मशीन वाला होना चाहिए, एक लाइफ वाला होना चाहिए, और एक आपका ह्यूमन सर्विसेज वाला होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। आई गिव यू द डिटेल फ्रॉम हियर। देखिए, टोटल बच्चा क्या करेगा। देखिए, लाइफ वाला वन, सिक्स क्लास में लाइफ वाला वन, मशीन मटेरियल वाला वन, सर्विसेज वाला वन। सेवंथ में भी लाइफ वाला वन, मशीन वाला वन, और ह्यूमन सर्विसेज वाला वन। एट्थ में भी। अब नाइन टेंथ में जाके क्या कहते हैं कि नाइन टेंथ मिला के बच्चे को टोटल छह प्रोजेक्ट्स करने, नाइन टेंथ को मिला के। लेकिन वहां पे ये नहीं कहा कि नाइन्थ में मशीन वाला एक करना ही करना है, वो कहते हैं छह टोटल करने हैं। आप चाहे उसको नाइन्थ में कर लो चाहे टेंथ में कर लो, बिकॉज एज पर द बोर्ड नाइन्थ एंड टेंथ इज एज्यूम टू बी वन स्टैंडर्ड, वन स्टैंडर्ड। तो टोटल नाइन टेंथ में आपको कंप्लीट करना है। हो सकता है कि आपने दोनों लाइफ वाले नाइन्थ में कर लिए, दोनों मशीन वाले आपने टेंथ में कर लिए, एक 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 सर्विसेज वाला नाइन्थ में कर लिया, एक सर्विसेज वाला टेंथ में कर लिया, कैसे भी करना है। बट आपको टोटल छह प्रोजेक्ट्स करने हैं नाइन टेंथ में जाके। एंड उसमें ये नहीं बताया कि आपको यही वाला नाइन्थ में करना है, ये वाला टेंथ में करना है, ऐसा नहीं है। बट सिक्स सेवंथ एथ में एकदम स्पेसिफिकली बताया है कि एक लाइफ वाला नाइन्थ में करना है, एक मटेरियल वाला सॉरी सिक्स में करना है, सेवंथ में करना है, एट्थ में करना है, ये क्लियरली बताया हुआ। नाउ इफ यू गो टू क्लास इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में ये ऑप्शनल है। कोई बच्चा लेगा अगर वोकेशनल सब्जेक्ट तो वो करेगा, नहीं लेगा तो नहीं। कोई फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा, मैथ्स लेगा, आपका अकाउंट्स लेगा, बिजनेस स्टडी लेगा, वो नहीं करेगा। जो वोकेशनल सब्जेक्ट लेगा वही करेगा। तो सिक्स सेवंथ एट्थ में कंपलसरी है। कैसे कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। नाउ हाउ इट विल गो। देखिए, ये मैंने कौशल बोध बुक से लिया है। जो कौशल बोध बुक है सिक्स सेवंथ एट्थ की, ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है एनसीईआरटी की वेबसाइट पे। इफ यू गो इन क्लास सिक्स, क्लास सिक्स में देखेंगे तो लाइफ वाले दो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है स्कूल किचन गार्डन, दूसरा दिया गया है बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ये दो दिए हैं, इनमें से कोई एक करा दीजिए आप। देन मशीन एंड मटेरियल में अगेन दो दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है मेकर स्किल्स, और एक दिया हुआ है एनिमल्स एंड एनिमेशन एंड गेम्स। इसमें से आप एक करा दीजिए, कोई भी एक करा दीजिए, आपके ऊपर है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन सर्विसेज ऑल्सो देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, वन इज स्कूल म्यूजियम एंड वन इज कुकिंग विदाउट फायर। ये दो दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक करा दीजिए। तो नाउ लाइफ वाले दो हैं, उनमें से कोई भी एक करा दीजिए। मशीन एंड मटेरियल वाले दो हैं, उनमें से कोई एक करा दीजिए। और ह्यूमन सर्विसेज में देकर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये दोनों करा दिया और एक ये करा दिया, कह दिया हो गया मेरे तीन। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा है कि लाइफ वाला एक पक्का होना चाहिए, मशीन वाला एक पक्का होना चाहिए, ह्यूमन सर्विसेज वाला एक पक्का होना चाहिए। नाउ इफ यू गो थ्रू द कौशल बोध बुक, तो कौशल बोध बुक के एंड में 30 प्रोजेक्ट्स और दिए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं और 30 प्रोजेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। आप उनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन है, सिंस आपके टीचर्स फर्स्ट टाइम करा रहे होंगे, फिर उनको वर्कशीट कैसे बनानी है, एक्टिविटी कैसे करानी है, ये सब चीजें टीचर्स को नहीं पता। तो ये जो छह प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं हर क्लास में, इनकी वर्कशीट, इनकी एक्टिविटी, इनका सब कुछ ऑलरेडी बुक में दिया है। तो आप एटलीस्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप इन्हीं को फॉलो करें। इन्हीं को फॉलो करेंगे तो आपके टीचर्स को पता चल जाएगा कि हाँ जी, वर्कशीट्स में क्या करना है, एक्टिविटीज में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन मेरा लगाना है। एवरीथिंग इज गिवन रिलेटेड टू दीज प्रोजेक्ट्स। मैं फिर बता रहा हूं, ये छह प्रोजेक्ट्स जो क्लास सिक्स में है वो कंपलसरी नहीं है। यू कैन चूज एनी अदर ऑल्सो, but if you will choose any other in the first year, then you have to do a lot of effort, a lot of effort in making the things for these six projects of class 6, six projects of class 7, and six projects of class 8. Everything is given in Kausal Bodh book. तो आप इन्हीं छह में से कोई तीन चूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके टीचर्स को एक्सपीरियंस हो जाएगा हाउ टू डू द थिंग्स, व्हाट आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एनईपी 2020। फिर वो कोई नया प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर में चूज करेंगे तो उनको करना काम आसान होगा। दिस इज माय सजेशन ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर ट्रेनर्स वर्कशॉप ऑफ सीबीएसई आई हैव अटेंडेड, देयर आल्सो इट वाज रिकमेंडेड कि आप ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। नाउ आई एम मूविंग टू दिस। नाउ प्रोजेक्ट्स कितने होंगे टोटल देखिएगा। सिक्स सेवेंथ एट्थ में हर क्लास में तीन प्रोजेक्ट्स होने हैं।
एक लाइफ का, एक मटेरियल का और एक ह्यूमन सर्विसेज का। यानी मिडिल स्कूल में जाके टोटल 9 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे बच्चों को। जब सेकेंडरी स्टेज 1 में जाते हैं तो वहां पे भी हर क्लास में 3 होना है, लेकिन वो नहीं बताया कि वो लाइफ वाला ही होगा या मटेरियल वाला ही होगा, लेकिन 3 होना है। यानी 2 क्लास में जाके 6 हो जाएगा। तो 9 इन मिडिल स्टेज एंड 6 इन सेकेंडरी स्टेज, तो टोटल 15 तो कंपलसरी होंगे। इफ एनी चाइल्ड इज चूजिंग वोकेशनल एजुकेशन इन 11th एंड 12th ऑल्सो, तो वहां पे एक और हो जाएगा, तो 16 हो जाएंगे। अदरवाइज स्कूल लाइफ में हर बच्चे को 15 प्रोजेक्ट कंपलसरी है। आई एम रिपीटिंग, 15 प्रोजेक्ट कंपलसरी है हर बच्चे को। 16th वाला उसी बच्चे को करना है जो 11th 12th में जाके वोकेशनल एजुकेशन लेगा, तो उसको करना है, अदरवाइज उसको नहीं करना है। ये हमें ध्यान रखना है। टोटल 15 प्रोजेक्ट्स एवरी बच्चा विल बी डूइंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पेडागोजिस, किस तरह से प्रोजेक्ट्स कराने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन फॉलोड बाय प्रैक्टिस। कोई डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, बच्चे उसको देखेंगे, फिर बच्चे वैसा ही करेंगे। फर्स्ट। नेक्स्ट इज केस स्टडीज को यूज करना है। नेक्स्ट इज फील्ड ट्रिप्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रोल प्ले। देन इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग खुद भी इंटर्नशिप्स करते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको पता है। एडुट्री में हम लोग बहुत इंटर्नशिप करते हैं। हम लोग फिजिकल इंटर्नशिप करते हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप करते हैं। अगर आप में से किसी को अपने बच्चों को एडुट्री के थ्रू इंटर्नशिप करानी है, प्लीज आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके स्कूल में भी इंटर्नशिप कराते हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर दैट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन वर्कशॉप्स, स्कूल में वर्कशॉप्स करानी है उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी बच्चे ने सेलेक्ट किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीजें आपको यूज करनी है इन कौशल बोध। प्लीज कौशल बोध में वर्कशीट्स करा करा के, या आप चैप्टर कंप्लीट मत करा दीजिएगा। कौशल बोध की एक बुक आ गई है, वो बुक के वर्कशीट्स करा दिए और चैप्टर खत्म हो गया कौशल बोध। प्लीज ऐसी गलती नहीं करना है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा हम्बल सजेशन है। इफ यू विल डू दिस, इस सब्जेक्ट की आत्मा मर जाएगी। इस सब्जेक्ट की आत्मा मर जाएगी, तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट मूव टू, कि हाँ जी, टाइम कितना देना है कौशल बोध सब्जेक्ट को। कौशल बोध को कितना टाइम देना है एज पर द गाइडलाइंस। नाउ व्हाट इट सेज। सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल स्कूल। 110 घंटे, 110 आवर्स इन अ ईयर, दैट इज 165 पीरियड, एज्यूमिंग 40 मिनट्स का एक पीरियड रहता है। 165 पीरियड पर ईयर। नाउ 3 टाइम्स, मतलब आपको पता है 3 प्रोजेक्ट्स करने हैं बच्चों को, तो 110 आवर्स है, तो 30 आवर्स अगर आप देते हैं, तो करीब करीब आपके 90 आवर्स तो प्रोजेक्ट्स को करने में खत्म हो जाएंगे बच्चों के। ठीक है, 45 पीरियड्स लगभग लगभग हर हर प्रोजेक्ट में। जो बचेगा बचेगा, क्योंकि टोटल 110 था, 90 आपने इधर दे दिया। जो 20 बचेगा, उसमें बच्चे का रिवीजन कराना है। अगर प्रोजेक्ट्स में कुछ कमी है तो उसको इंप्रूव करना है, कौशल मेरा कराना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो दैट ऑल टू बी डन इन द रिमेनिंग 20 आवर्स। तो टोटल 110 आवर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। बिकॉज अभी कुछ दिनों के बाद क्रेडिट फ्रेमवर्क आ जाएगा, और क्रेडिट जो है आपको हर 30 आवर्स पे एक क्रेडिट देनी है बच्चों को, क्रेडिट फ्रेमवर्क में ऑन द अपार आईडी। इसलिए आपको ये आवर्स की कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज दिक्कत एक टाइम पे आ जाके आएगी। ठीक है, अपनी टाइम टेबल, अभी हर स्कूल में टाइम टेबल बन रहा होगा, तो यू हैव टू फोकस कि हाँ इतने आवर्स हमें इस कौशल बोध पे देना ही देना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वीकली स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करेंगे। 5 पीरियड इन अ वीक देते हैं, तो ये कैलकुलेट हो जाता है, मान के कि 40 मिनट्स का एक पीरियड है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग लगभग। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज रिटन स्पेसिफिकली इन द डॉक्यूमेंट। कौशल बोध को कोशिश करना है ब्लॉक पीरियड, बिकॉज बच्चे एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो 40 मिनट मिले, तो अगर आप ब्लॉक पीरियड देते हैं तो इट विल बी इजी टू डू। आई विल शो यू द टाइम टेबल गिवन बाय एनसीएफ। उन्होंने एक डेमो टाइम टेबल भी दिया हुआ है, आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए जरा, इन्होंने जब कौशल बोध के लिए दिया, ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने आपको लास्ट 2 पीरियड इन्होंने कंबाइन करके दिए। यहाँ पे लास्ट 2 पीरियड कंबाइन करके दिए, एक पीरियड यहाँ दिया। इस तरह से 5 पीरियड हो गए। ये एक डेमो टाइम टेबल, इट इज गिवन इन द एनसीएफ 2023। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर। मैंने अपना कुछ नहीं बनाया है। प्लीज आप देखेंगे वोकेशनल एजुकेशन के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, 110 आवर्स, 165 पीरियड्स, और उसको अलॉट कैसे करना है, कैसे किया उन्होंने। 2 पीरियड यहाँ दे दिया ट्यूसडे को,
पीरियड दे दिया इन्होंने फ्राइडे को, एक पीरियड दे दिया सैटरडे को, टोटल 5 पीरियड हो गए, काम खत्म। सेम दे हैव यूज्ड इन सेकेंडरी स्कूल आल्सो। सेकेंडरी मींस क्लास 9 10, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11 12। 11 12 में मैंने कहा जो बच्चा लेगा तभी करना है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो दीज टू पीरियड्स कंबाइन करके यहां दे दिया, फिर दीज टू पीरियड्स कंबाइन करके यहां दे दिया, और एक यहां दे दिया, टोटल 5 पीरियड दे दिए। इस तरह से आपको टाइम टेबल में इसको फिट करना है। कैसे करना है कि ब्लॉक पीरियड लगाने की कोशिश करनी है मैक्सिमम, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल रिक्वायरमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि यू हैव टू फॉलो, बट कोशिश यही करना है। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हु विल टीच दिस? पेज 445 ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैं आपको पेज नंबर के साथ बता रहा हूं बिकॉज बाद में टीचर स्क्रिप्ट करते हैं स्कूल में कि मैं क्यों पढ़ाऊं। प्लीज मैं आपको बता रहा हूं, इट इज रिटन स्पेसिफिकली vocational education to be integrated within the school within the constraint of existing teacher force and resources। जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, उनको उनसे पढ़वाना है आपको 6 7 8 में। आपको प्लीज अलग से कोई वोकेशनल एजुकेशन का टीचर हायर नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो वो टीचर, सपोज आपने किसी को 50,000 रुपए, 30,000 रुपए, 20,000 रुपए, कुछ भी करके आपने एक हायर कर दिया, वो बच्चों को कुछ कराने लगा तो वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट्स के साथ। इंटीग्रेशन नहीं होगा, सारा कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। दैट इज द रीजन यू आर नॉट सपोज टू हायर। आपको प्रोजेक्ट वाइज जो प्रोजेक्ट है, टीचर्स को बोलिए, हर क्लास के टीचर को, ओके मैथ्स टीचर्स अपने लिए एक 6 में, एक 7 में, एक 8 में प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, and they will do that same way science teacher, same way social science teacher, they will teach that because उनके number of period as per NCF 2023 कम हुए हैं अब। बिकॉज इनमें अगर पीरियड जा रहे हैं तो उनके नंबर ऑफ पीरियड कम हुए हैं, उन्हीं टीचर्स को आपको ये सब्जेक्ट देने हैं। आपको अलग से टीचर हायर करके उनको ये सब्जेक्ट नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है पक्का, ठीक है। आगे मूव कर रहा हूं, हु विल टीच, आई होप मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कौशल मेला। ये कंपलसरी मेला है, इसका आपको फोटोज देखनी है, वीडियोस बनानी है, एक्सेल आपको एक सीबीएसई से आएगी, उसमें चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी, ऐसा मुझे बताया गया है इन मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग। तो आपको एक एक्सेल आएगी, उसमें कुछ चीजें आपको हो सकता है वो प्रूफ ना मांगे लेकिन डेटा मांगेंगे, इसलिए आपको कौशल मेला ऑर्गेनाइज करना कंपलसरी है। नाउ व्हाट इज दिस? कौशल मेला को समझने की कोशिश करते हैं। एनुअल स्किल फेयर टू बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। 3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, यानी कि हर प्रोजेक्ट के बाद नहीं करना, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, 6 का एंड जब हो रहा होगा, मे भी कहीं जनवरी फरवरी में जाके, मे भी दिसंबर जनवरी में जाके आपको एक कौशल मेला करना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, स्टूडेंट, हर बच्चे ने हर साल 3 प्रोजेक्ट किया हुआ है, लेकिन उस तीनों में से कोई एक जो उसका बेस्ट होगा वो प्रोजेक्ट करेगा। हर बच्चा अपना बेस्ट बेस्ट करेगा। तो जो मेरा में तीनों तरह के प्रोजेक्ट होंगे, लाइफ वाला भी होगा, मटेरियल वाला भी होगा, और आपका ह्यूमन सर्विसेज वाला भी होगा। तो मेरा विल हैव all 3 type of projects, but बच्चा will have his own best वाला project because he have done 3 projects during the year। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें प्रोजेक्ट को डिस्प्ले करना है, रिफ्लेक्शंस देने हैं, एप्लीकेशंस उसको यूज करना है, दिखाना है कि हमने इसको क्या किया, अपने घर पे कैसे यूज किया। कुछ भी हो सकता है कि प्लांटेशन किया हमने अपने घर में, किचन गार्डन बनाया है, उसकी फोटो लाया है बच्चा, जो भी कुछ करना चाहते हैं आपको अपने उस मेले के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर्पज क्या है इस मेले का? इस पर्पज को अगर आप समझेंगे तो इस मेले को सही से करेंगे, अदरवाइज फिर इसको कुछ और ही कर देंगे। पर्पज पहला कहता है शोकेस स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स। बच्चे ने क्या सीखा है, क्या बनाया, उसको शोकेस करेंगे, बच्चे को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगता है। आप बच्चे का फोटो खींचते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चे को देखता है तो ये अच्छा लगता है उसको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थे, बिल्ड स्टूडेंट टीचर कम्युनिटी कोलैबोरेशन, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनकरेज रिफ्लेक्शन एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, प्रोवाइड एग्जीबिशन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, कैसे चीजों को मैनेज कैसे करना है, ये एक्सपीरियंस भी बच्चों को आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट, फीडबैक फ्रॉम स्कूल मैनेजमेंट, आपके प्रिंसिपल, आपके डायरेक्टर, आपके चेयरमैन, आपके वो लोग आएंगे, देखेंगे कैसा है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, बच्चों को बताएंगे, बच्चे खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वो देखते हैं, तो दैट फीडबैक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद
मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ लोगों को बुला के आपको वर्कशॉप्स वगैरह करानी है। वो लोग कौन हो सकते हैं? वो आप ही के स्कूल का कोई अलुमनी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो उनको आपको इस डेट पे, ऑन द डे ऑफ कौशल मेला, फेलिसिटेट करना है। जिन्होंने आपके बच्चों को ड्यूरिंग द ईयर दे हैव हेल्प द बच्चा, उनको आपको फेलिसिटेट करना है, सो दैट कि नेक्स्ट ईयर भी आपका अच्छा हो, तो उनको भी अच्छा लगेगा। ओके, हाँ, हमें स्टेज पर बुलाया गया, मे बी आपने एक थैंक यू लेटर ही दिया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कौशल मेला। नेक्स्ट थिंग, प्रिंसिपल, ध्यान रखना है इस कौशल मेला को करते समय कुछ चीजें। कौशल मेला इज नॉट अ कंपटीशन। कौशल मेला कंपटीशन नहीं है। कौशल मेला में कोई कंपटीशन नहीं करना, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, विनर कौन है, ऐसा नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। कौशल मेला में हर बच्चे के वर्क को इक्वल रिस्पेक्ट देना है, इक्वल रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज स्टूडेंट लेड पार्टिसिपेशन। टीचर्स ने ये मेरी क्लास का प्रोजेक्ट है, तुम्हारी क्लास का प्रोजेक्ट है, मेरे बच्चों का नहीं जी, बच्चों को करने दीजिए। टीचर्स के बीच का कंपटीशन इसको नहीं बना देना है। दिस शुड बी मैनेज्ड बाय बच्चा, एग्जिबिटेड बाय बच्चा, टू बी शोन बाय बच्चा। बच्चों को इस एग्जीबिशन को करने दीजिए। इट शुड नॉट बी कि हाँ क्लास 6 के टीचर का, हाँ जी इन्होंने अपने बच्चों से बहुत अच्छा करा। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्शन थ्रू डायरी राइटिंग, ठीक है ये। नेक्स्ट वेरी एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। आपको पेरेंट्स को भी इनवाइट करना है, मे बी आपके स्कूल के दीदी भैया, ड्राइवर, कंडक्टर, उन लोगों को भी बुलाना है, देखिए बच्चों ने क्या लगाया, वो आएंगे देखेंगे। दैट और कैन बी डन, दैट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट आपको करना है। अपनी सोसाइटी के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैन बी ऑर्गेनाइज एट स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कैसे भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्कूल है उसके 10 ब्रांचेज हैं, वो 10 ब्रांचेज को मिला के अपना एक कौशल मेला कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो, इट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट वेयर इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ कौशल मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान। नाउ देखिएगा जरा, पेज 127 मैंने आपको कहा था, जो आपका ग्रुप 2 है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन के लिए। यहां पे आपका स्कूल में असेसमेंट होगा। इवन इन द बोर्ड क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th, बोर्ड नहीं होगा। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड असेसमेंट मैक्सिमम है। डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड असेसमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वाज गोइंग थ्रू कौशल बोर्ड बुक, और वहां पे मेरे को ये दिखाई दिया, देखिए कौशल बोर्ड की 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, तीनों बुक्स में ये चीज है। ये पेज मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। कहता है रिटन टेस्ट 10% का करा दीजिए, ओरल प्रेजेंटेशन वाइवा वगैरह 30% मैक्सिमम। एक्टिविटी बुक बच्चों को मैनेज करवाइए, जो वॉट एवर दे हैव डन, पोर्टफोलियो बनाए पिक्चर्स वगैरह लेके उसका, एंड टीचर ऑब्जर्वेशन 20%। इस तरह से आपको मार्किंग करना है, इस तरह से आपको मार्किंग करना है, इस सब्जेक्ट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट मैं आता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि स्कूल में अब ये कौशल बोध जो किया है, ये करियर काउंसलिंग से कैसे कनेक्टेड है, इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दैट वी आर मूविंग। सबसे पहले क्या कहता है देखिए जरा, नो रिजिड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम। जब ये बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये जो है ना साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये वो, इसको खत्म करना है सबसे पहले। तो एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन एंड इंटर्नशिप, पैरा 4.44 ऑफ एनईपी, क्लियर लिखा हुआ है वहां पे। नेक्स्ट देखेंगे 5.14 में कहता है होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्म चॉइसेस। बच्चा फिजिक्स ले रहा है तो क्यों ले रहा है? जेई देने के लिए नहीं ले रहा हो। फिजिक्स का उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, फिजिक्स वो क्यों पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स का उसके अंदर इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड है नहीं है, इसको कम अलाइन करने के लिए जो आपने कौशल बोर्ड में जो उसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसके थ्रू आपको देखना है, जज करना है, और बच्चे को एहसास दिलाना है कि हाँ आपके अंदर फिजिक्स का एप्टीट्यूड है या नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद नॉर्मल एजुकेशन, ये मैं आपको शुरू से बता चुका हूं। आई एम मूविंग टू एनसीएफ 2023 में भी करियर काउंसलिंग के बारे में क्या कहा गया, ध्यान से देखिए। कहता है करियर अवेयरनेस फ्रॉम मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज में क्या कर रहे थे? मिडिल स्टेज में हम कौशल बोध कर रहे थे। उस कौशल बोध कहाँ इंटीग्रेट करना है? करियर से। करियर से अल्टीमेटली बच्चे के करियर पे जाके इफेक्ट करेगा, करियर चॉइसेस पे जाके इफेक्ट करेगा, कोर्सेज पे जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है। बच्चे का, हर बच्चे का आपको पोर्टफोलियो, यू हैव टू मेक द पोर्टफोलियो एंड यू हैव टू ट्रैक द पोर्टफोलियो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, क्लास 6 ऑनवर्ड, ठीक है। इंडस्ट्री लिंकेजेस करनी है, एक्सपोजर्स, वोकेशनल पाथवेज, एंड कहता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को अलाइन करना।
मुझे इंजीनियर बनना है, ये मेरा इंटरेस्ट है, क्या मुझे अंदर इंजीनियर बनने का एप्टीट्यूड है? मुझे डॉक्टर बनना है, दैट कैन बी माई इंटरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन मेरी सिस्टर डॉक्टर बनी थी या शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बना था, लेकिन क्या मेरे अंदर भी डॉक्टर बनने का एप्टीट्यूड है? तो बच्चे का इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों को अलाइंड करना है, दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है, बच्चों को बताना है। नाउ आई एम मूविंग टू सीबीएसई का सर्कुलर जो जनवरी 19 को आया, क्या कहता है ध्यान से देखें, कहता है मैंडेटरी अपॉइंटमेंट ऑफ करियर काउंसलर। हर स्कूल में करियर काउंसलर मैंडेटरी है। रिपीटिंग, करियर काउंसलर मैंडेटरी है। इससे पहले कहता था काउंसलर मैंडेटरी है, फिर उन्होंने कह दिया, दो बात कर दिया, बिहेवियरल काउंसलर अलग है, करियर काउंसलर अलग है, और करियर काउंसलर मैंडेटरी है। यानी एक बिहेवियरल काउंसलर होगा जो ऑलरेडी पहले से मैंडेटरी था, अब एक करियर काउंसलर, यानी दो काउंसलर होंगे स्कूल में, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर्ड करियर सेशन रिक्वायर्ड, ये जनरली 90%। अच्छा ठीक है, ये एकेडमी वाले आए, सर हम आपके स्कूल में करियर काउंसलिंग करना चाहते हैं, आए एक सेशन लिया, वी डू करियर काउंसलिंग स्कूल। नो, देयर शुड बी स्ट्रक्चर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यू हैव टू प्लान हाउ मेनी सेशन, विच टॉपिक्स, फ्रॉम whom, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस। तो जब तक आपका पास एक स्ट्रक्चर डिफाइंड नहीं है, योर करियर काउंसलिंग इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। क्या किया, कब किया, क्यों किया, बच्चों ने का फीडबैक, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, डॉक्यूमेंटेड। और मैं आपको बता रहा हूं, सिंस हर स्कूलों का रीअफिलिएशन और वो आता है, रिन्यूअल आता है, आपको इस बार जब नए फॉर्म आएंगे तो उसमें आपको करियर काउंसलर का नाम पूछा जाएगा, हो सकता है करियर काउंसलर का काम भी पूछा जाए। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू द डॉक्यूमेंटेशन of everything. Now, let's move. Who can become a career counselor as per the CBSE letter 19th January I'm talking about. Now, research orientation. उस पर्सन का रिसर्च में स्किल होनी चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। नाउ, अपडेटेड नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन होना ही चाहिए, बिकॉज वही पर्सनल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, न्यू एज करियर ऑप्शंस उसको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम उसको पता होना चाहिए, कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होते हैं, कैसे होते हैं। आई विल गो ऑन डिटेल ऑफ दैट। देन नेटवर्किंग एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट। नेटवर्किंग एबिलिटी should be there with the बच्चा। then they are talking about student mentoring skills, student mentoring skill होना चाहिए। एंड बहुत प्रो बोर्ड में लिखा हुआ है वहां पे, एज पर सर्कुलर, कि जो टीचर है उस वो साइकोलॉजी का ही टीचर हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। साइकोलॉजी में ही पोस्ट ग्रेजुएट हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अ टीचर विद पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट का पर्सन जिसके अंदर ये स्किल है, दैट पर्सन कैन बिकम करियर काउंसलर। फॉर बिहेवियर काउंसलर, साइकोलॉजी में आपको मास्टर्स होना कंपलसरी है, बट फॉर करियर काउंसलर इट इज नॉट मैंडेटरी टू डू डिग्री इन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना। ना, कुछ स्किल्स के बारे में वो और कहते हैं। पहला कहता है एसोसिएशन विद, लेटर में लिखा हुआ है, प्लीज गो थ्रू द लेटर इन डिटेल। आपको जो सर्कुलर आया हुआ है 19 जनवरी का, एसोसिएशन विद यूनिवर्सिटीज। देन कहता है ऑर्गेनाइजिंग करियर फेयर्स। फिर कहते हैं बिल्ड इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इंडस्ट्री के साथ फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। ठीक है, फैसिलिटेट इंटर्नशिप फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स, इनवाइट एलुमनाइज। जो इसीलिए मैंने पिछली बार सेशन लिया था, मैंने कहा था ट्राई टू मेक, डू नॉट ट्राई टू अपॉइंट न्यू करियर काउंसलर इन द स्कूल। जो आपका पुराना कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, साइंस का टीचर है, मैनेजमेंट का टीचर है, कॉमर्स का टीचर है, जो 10 साल 15 साल पुराना है, जिसका वर्कलोड कम है, उस टीचर को आप करियर काउंसलर अपॉइंट करने की कोशिश करिए, बिकॉज दैट टीचर विल बी नोइंग द पेरेंट्स, एलुमनाइज एंड एवरीथिंग। आप नए पर्सन को अपॉइंट कर देंगे तो पर्पज फुलफिल नहीं होगा मैक्सिमम केसेस में। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कर सकते, बट वो पर्पज फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, ट्रैक न्यू कोर्सेज, व्हाट इज, जो भी नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उसको पता होना चाहिए, और स्कूल को एज ए करियर हब यूज करना है। ये कुछ चीजें बताई गई हैं फॉर द करियर काउंसलर ऑफ द स्कूल। ठीक है, नाउ मैंने आपसे कहा था रिसर्च एबिलिटी होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर, जो पर्सन शुड बी अपॉइंटेड एज ए करियर काउंसलर। नाउ रिसर्च एबिलिटी ऑफ रिलेटेड टू करियर्स, then related to courses, then related to colleges, then related to entrance examination, and then related to various platforms of form filling, of maybe past year papers,
एक्चुअल में क्या है हमारे, मैं आफ्टर गोइंग 300-400 स्कूल्स आई हैव रियलाइज कि हम करियर काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम से। क्या करना है बच्चा, जेई करना है, चलो अच्छा, नो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। पहले एक करियर डिफाइन होगा, फिर उस करियर के लिए कोर्स डिफाइन होगा, फिर उस कोर्स के लिए कॉलेज डिफाइन होगा। कॉलेजेस जितने भी हैं कि हाँ जी मुझे अगर इंजीनियरिंग करना है तो कौन कौन से कॉलेज है, फिर उन कॉलेजेस में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिफाइन होगा, फिर उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर करने के लिए व्हाट प्लेटफॉर्म में, कोचिंग सेंटर, ये वो जो भी डिसाइड करना है। तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, ना कि नीचे के ऊपर से। मैक्सिमम केसेस में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये गलती हमें नहीं करनी, ये आपको ध्यान रखना। लेट्स मूव टू कुछ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन जिसके बाद इफ यू वांट टू बिकम अ करियर काउंसलर ऑफ द स्कूल, कम से कम इतना आपको जरूर पता होना चाहिए, विच आई एम गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट 2 स्लाइड्स। व्हाट आर दोज बेसिक थिंग? पहले तो आपको ये जितने भी टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बारे में, ये कौन है, कहाँ है, कितने, सपोज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने आईआईटीज इंडिया में, कंप्यूटर साइंस कहाँ का बेस्ट है, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ का सिविल बहुत अच्छा है, कहाँ पे बीटेक इकोनॉमिक्स में कराया जाता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू नेक्स्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। फिर आपको नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस में ये सारे जो बहुत टॉप वाले इंस्टीट्यूशन है, प्लीज, सब नहीं पता हो सकता है, 500 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सबका नाम नहीं पता होता है, बट टॉप इंस्टीट्यूशन पर्सन शुड बी नोइंग हु वांट्स टू बिकम द करियर काउंसलर इन अ स्कूल। एंड अगर आप प्रिंसिपल हैं, आप करियर काउंसलर का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कम से कम इतनी चीजें उनसे जरूर पूछें कि हाँ जी अच्छा, ये बताइए एमयू में कौन कौन से कोर्सेज है, एमयू में कितनी सीट्स है, एमयू का एडमिशन प्रोसेस क्या है, ये सब बेसिक चीजें उस पर्सन को पता होनी चाहिए। ठीक है, डीयू का प्रोसेस क्या है, डीयू में सीयूटी का एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट क्या, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, क्या उस पर्सन को पता है कि सीयूटी के बाद हमें सीएसएएस का फॉर्म भरना पड़ता है टू गेट इनटू डीयू। तो ये चीजें पता होना चाहिए, नहीं है तो दैट पर्सन शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज अ करियर काउंसलर ऑफ द स्कूल। ठीक है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़े बहुत जो फेमस है उनके बारे में आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ लेट्स मूव टू द entrance examination. Few things a career counselor should know about the entrance examination. What basic thing? पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस का बेसिक आइडिया होना चाहिए, देन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती कि नहीं होती, ये सब थोड़ा चीजें पढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, अच्छा जी नाटक है, इफ यू आस्क मी, कल के न्यूज़पेपर में नाटक के नोटिफिकेशन आया है, तो एज ए करियर काउंसलर मुझे पता है नाटक का नोटिफिकेशन आ गया जी, ये डेट है जी, बच्चों को मैं बता दूं। दैट पर्सन शुड बी नोइंग ऑल दोस थिंग। ठीक है, काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से हमें एप्टीट्यूड टेस्ट कराने हैं तो कौन सा प्लेटफॉर्म हम यूज करें, कौन से फ्री प्लेटफॉर्म है, कौन से पेड प्लेटफॉर्म है, कौन से अच्छे प्लेटफॉर्म है, कौन प्लेटफॉर्म बच्चों के डेटा को मिसयूज नहीं करते हैं। दीज ऑल नॉलेज अ करियर काउंसलर शुड हैव। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सपोज मैं जेई का एग्जाम दे रहा हूं, अगर जेई नहीं हुआ तो क्या, मैं वीआईटी दे सकता हूँ, बिट्स दे सकता हूँ, सीयूटी के थ्रू कुछ कॉलेज में जा सकता हूँ। सपोज मैं यूसीट दे रहा हूँ, यूसीट नहीं हुआ तो क्या, निफ्ट दे सकता हूँ, एनआईडी दे सकता हूँ, एफडीडीआई दे सकता हूँ। तो सब्स्टिट्यूट एग्जामिनेशंस का नॉलेज भी करियर काउंसलर को होना चाहिए। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ फॉर करियर काउंसलिंग इन स्कूल व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि इतना आपको बेसिक चीजें स्कूल में जरूर करनी है। इफ यू आर डूइंग करियर काउंसलिंग एंड यू आर सेइंग दैट आई एम डूइंग करियर काउंसलिंग इन माय स्कूल, क्या चीजें हैं? एक तो करियर फेयर जरूर लगाए, जरूर अपने स्कूल में करियर फेयर लगाए ताकि बच्चों को डिफरेंट चीजों के बारे में जानकारी मिले। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट टॉक्स। एक्सपर्ट टॉक्स के लिए आपको बाहर से कुछ लोग, आपके स्कूल में सपोज आपके 1000 पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चे हैं, तो 2000 पेरेंट्स हैं, उनको बुलाने की कोशिश करें। उनका प्रोफाइल आपके पास सब कुछ होता है, जब वो फॉर्म भरते हैं उनमें से देखिए कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कौन एंटरप्रेन्योर है, उनका प्रोफाइल देखिए, उनको इनवाइट करें, उनको एक थैंक यू लेटर दें, एक अच्छा सा प्लांटर दें, दे बी वेरी हैप्पी, उनको आप कॉल करें, दैट इज वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट आपका है एप्टीट्यूड एंड असेसमेंट टेस्ट, बच्चे का 9th क्लास में जरूर कराएं, जरूर कराएं, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है पेरेंट्स को, बच्चे को कि इन विच डायरेक्शन वी शुड गो। देन स्ट्रीम सिलेक्शन का आपको सेशंस कराने चाहिए एक्सपर्ट को बुला के, व्हाट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स व्हाट आर द करियर ऑप्शंस, ये जरूर कराएं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स को और बच्चों को पता ही नहीं होता कि हाँ विद कॉमर्स आल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शन, विद ह्यूमैनिटीज आल्सो व्हिच आर द करियर ऑप्शन, ये नहीं पता है, इसलिए बच्चा साइंस में ही जाना चाहता है, इसलिए बच्चा पीसीएम ही लेना चाहता है। तो दैट इज द रीजन स्ट्रीम सिलेक्शन सेशंस जरूर कराएं। 11th क्लास में
और टॉप कॉलेजेस कोर्सेज के बारे में जरूर बच्चों को बताएं। 12th क्लास में एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताएं। ना देखिए, 9th क्लास में असेसमेंट करा दिया, 10th क्लास स्ट्रीम के बारे में बता दिया, 11th क्लास में कोर्सेज के बारे में बता दिया, एंड 12th क्लास में एंट्रेंस एग्जाम। तो हर क्लास में एक एक चीज कराई, हो गया। तो दैट इज स्ट्रक्चर्ड वे, स्ट्रक्चर्ड वे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि स्ट्रक्चर्ड वे में काम को करना है। ऐसा ना हो कि हाँ जी हम बस किए जा रहे हैं जी, कुछ भी कर दिया हो गया। ठीक है। और 1-to-1 काउंसलिंग इफ रिक्वायर्ड, तो 1-to-1 काउंसलिंग कैन बी डन, बट ये हर बच्चों का नहीं हो सकता स्कूल में, जिसको जरूरत हो मे बी ऑन पेड बेसिस, नॉट पेड बेसिस, जैसे भी आपको डिपेंडिंग अपॉन योर इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द स्कूल आप इसको कर सकते हो। नाउ कैसे करें कि हाँ करियर काउंसलिंग बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो? तो व्हाट आई डू व्हेन आई एम वर्किंग विद मेनी स्कूल्स, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि हम बच्चों की एक कमेटी बनाते हैं। जैसे आप अपने हेड बॉय हेड गर्ल ऐसी कमेटी बनाते हैं या एमयूएन की कमेटी बनाते हैं, वैसे हम बच्चों की करियर काउंसलिंग कमेटी बनाते हैं। उसका एक हेड होता है, एक वाइस हेड होता है, कुछ बच्चे 9, 10, 11 के मेंबर्स होते हैं। तो एक जरूर ये काम करें कि आप बच्चों की एक कमेटी बनाएं, जिसे कॉलेज में जैसे प्लेसमेंट सेल होता है वैसे ही यहाँ पे करियर काउंसलिंग सेल बना सकते हैं। वो बहुत तेजी से काम, बिकॉज टीचर्स आर ओवरबर्डन नाउअडेज, बहुत ओवरबर्डन है। आप सब कुछ टीचर से एक्सपेक्ट ना करें, और बच्चों को अगर आप इंपावर करें, उनको बताएं, गिव द इंपॉर्टेंस टू दीज पोस्ट, दे विल डू अ लॉट। बच्चा विल डू अ लॉट, आई हैव सीन, एंड बच्चा आर डूइंग अ लॉट। ठीक है। देन करियर कैलेंडर को बनाएं, जैसे आप बाकी एक्टिविटीज का कैलेंडर बनाते हैं वैसे आपको करियर कैलेंडर बनाना है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनको इनवाइट करें। देन अभी मैंने 3 दिन पहले देखा, न्यूज़पेपर में आया कि हिंदू कॉलेज के साथ मॉडर्न स्कूल बाराखंबा ने कोलैबोरेट किया फॉर एक्टिविटीज एंड ऑल दोस थिंग्स। उन्होंने कोलैबोरेशन किया, एमओए साइन किया। नाउ दे देयर बच्चा विल गो टू देयर, देयर प्रोफेसर्स विल कम टू देयर स्कूल। तो दैट ऑल यू हैव टू डू इफ यू वांट गुड एक्सपोजर। अदरवाइज तो फिर आप कोई भी बगल वाला आएगा जो अपना कोर्स बेच के चला जाएगा। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट। ट्राई टू हैव जस्टिस कि हाँ आप कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, करियर कॉर्नर्स कहीं बनाए, कुछ बोर्ड बनाए जिसके अंदर कौन सी डेडलाइन है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा नया कोर्स लॉन्च हुआ है, वट एवर, उसके करियर कॉर्नर्स या करियर काउंसलिंग रूम बना सकते हैं इफ यू हैव सेपरेट। अदरवाइज कॉरिडोर में भी कुछ बोर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं। वट एवर यू वांट टू डू, इन दैट वे यू कैन मैनेज द थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देन हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन के ट्रैकिंग, कितने बच्चों ने जेई का फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने सीयूटी का फॉर्म भरा है। अभी मैं आई वाज गोइंग थ्रू लिंक्डइन, तो वन स्कूल आई एम वर्किंग फॉर, उनके 5 बच्चों ने यूसीड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दे हैव पुट इट ऑन द लिंक्डइन। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने अपना, जब जेई का रिजल्ट आया, हर स्कूल ने, हमारे ये बच्चे, हमारे वो बच्चे, 2 बच्चे 4 बच्चे वॉट एवर है, यूसीड का रिजल्ट आ गया, स्कूलों को पता ही नहीं कि हाँ स्कूल में यूसीड का भी कुछ होता है। मेरे बच्चे ने किसने भरा था, किसने नहीं भरा था, किसका क्या नंबर नहीं पता। You are giving importance to a particular course, a particular college, a particular entrance examination. That is the reason everybody is going for that. Please give importance to other things also. क्या यूसीड के आपके बच्चों ने फॉर्म भरा था, आपको पता भी है किन बच्चों ने भरा था, किन बच्चों का कैसा रिजल्ट आया है, आपके टीचर्स ने बताया भी था। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन की ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। then career awareness sessions, you can call the parents, alumni and all those things, then you can have the sessions. नहीं होता तो कुछ नहीं, तो आजकल तो वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल है, आपके अपने टीचर्स भी उसको कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू, बट प्लान इट। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हम 9th क्लास में ये 15 करियर्स को कवर करेंगे, 10th क्लास में ये 15 करियर को कवर करेंगे, देन टोटल 30 करियर हम 9th 10th में कवर कर देंगे। इस तरह की प्लानिंग कैलेंडर वाइज आपके पास होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डेडलाइन अलर्ट्स, अगर आपके पास एसएमएस वगैरह भेजते हैं स्कूल से, या तो पेरेंट्स को जरूर भेजें, ओके दिस इज द लास्ट डेट ऑफ, जैसे आपका नीट का लास्ट डेट कब है, सीयूटी का लास्ट डेट कब है, तो दैट ऑल्सो इफ यू कैन सेंड इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग करियर काउंसलिंग इन द स्कूल। ठीक है। रिसोर्स बैंक बना के रखें, लाइब्रेरी वगैरह में किताबें रख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स रख सकते हैं, मे बी एक्सेल में कुछ चीजें रख सकते हैं, सो दैट कि बच्चा जो कुछ वीडियोज को सेलेक्ट करके आपके लाइब्रेरियन को बोल सकते हैं कि रख सकते हैं, सो दैट कि बच्चे को जिनको जानना है जाके उसको देख सकते हैं। तो दैट ऑल ऑल्सो कैन बी डन टू द डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन, वट एवर यू वांट, दैट इज स्कूल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होती है, तो दैट यू शुड बी डूइंग। वी डू द सेम मैनर इन डिफरेंट स्कूल्स वेयर आई गो, तो दैट इज द रीजन आई एम गिविंग यू द थिंग्स। आई होप मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश किया, बिकॉज वी हैव लिमिटेशन ऑफ टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है, मेरे से कुछ गलतियां होंगी तो उसकी मैं माफी मांगूंगा। अब मैं आप लोगों का फीडबैक लूंगा। आई हैव ट्राइड कि मैं बहुत बड़ा ना करूं इसको, एक 1.25 घंटे में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश किया, टॉपिक बहुत बड़ा था।
लेकिन I tried my best. Now I am giving all of you opportunity to speak. Now any one of you want to give the feedback or you have a question, आप अच्छा बुरा जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं. You are I am okay with that. So please now you have option to unmute yourself. Anyone? Hello, sir. Hello ma'am, This is कैसे हैं Anju आप? this side. मैं Yes बढ़िया ma'am. हूँ sir, आप सुनाइए. It was एकदम very ठीक. nice, sir. Thank It you. was a very vast knowledge was given in a little time, but yes, we adapted many things and we are doing it. But it's a very difficult task, actually speaking. मैं This caution board. आपके सिटी में आ रहा हूँ. कोई सेक्रेड हार्ट स्कूल है आपके सिटी में, तो वहां मैं हाँ जी, हाँ जी. 13th को और 24th को 2 दिन रहूंगा मैं वहां पे. इस month. हाँ इसी मंथ, इसी. Oh, I won't be here. I'll be coming back in May. I'm ओके. missing it. May I'll be most probably I think June या July में I'll be calling you to my schools also. क्योंकि ये चीज ऐसी है जो सर आपने समझाई है ना, it is slightly difficult for us to understand within few minutes because बस we मैम have to sit बहुत and लंबा हो discuss जाएगा, many things. बहुत लंबा हो जाएगा, तो हाँ इट जी. विल बी वेरी डिफिकल्ट. तो दैट इज द रीजन आई ट्राइड कि हाँ बेसिक बेसिक आइडिया लग जाए सबको, बिकॉज देयर आर Yes, लॉट ऑफ sir. डॉक्यूमेंट. एनईपी भी पढ़ना है, एनसीएफ भी पढ़ना है, स्क्वैब भी पढ़ना है, एनसीईआरटी की गाइडलाइंस भी पढ़नी है, कौशल बोध की बुक्स भी पढ़नी है. जब ये सब कुछ पढ़ लेंगे, सर्कुलर्स भी पढ़ने, तब जाके ये चीजें निकल के आई हैं विच आई हैव मेड. तो मैंने तो अपनी तरफ से पढ़, क्योंकि नहीं, आई एम. it has cleared many doubts in our minds and moreover अब ना वो जो career counseling है थोड़ा easy लगने लग गया है कि yes these are the steps which we have to follow and literally it was very nice, थैंक यू very मैम. very good and eye opening. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच मैम. Thank you, थैंक यू sir. वेरी मच. Thank you एनीवन very much. एल्स प्लीज? एनीवन एल्स? Any Yes, feedback? sir. Yes, please. You can ask the question. Sir, it was a pleasure attending your session. I had earlier attended the Kaushal Bodh one also, and this one was even better than the last one because you had aligned it with career counseling, which Thank is a you. big issue for class 11th and 12th. And aligning this together is an eye opener, like what we have been doing and what we have to do now. है ना? So these things Thank you. have to be aligned, and hats off to you for explaining it in such a well manner. One thing I would like to ask you, sir, like last time you had shared the video and everything beforehand. This time you did not share. मैम अभी अभी सेशन खत्म होते ही मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आई प्रॉमिस. Oh, ठीक है. thank बस you, sir. Thank you so much. मेरी आप लोगों से Because एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जैसा भी लगा होगा एक फीडबैक जरूर लिख दीजिएगा आप लोग इस सर सेशन में. बिल्कुल, वो तो मैं आपको पर्सनली भी लिखती हूँ और वैसे भी लिखूंगी. इसको रिपीटेड सुनूंगी ना तो सर कहीं ना कहीं कुछ कुछ नो रह जाता है आई सुनने में भी. तो दैट इज द रीजन दैट आई वांट टू आस्क यू. I थैंक यू promise सर. I will share the recording of the थैंक यू. session and थैंक यू सो मच. I will share the थैंक यू. PPT. These two things I will. ओके. Okay. थैंक यू सो मच Thank सर. you. थैंक यू सो मच. Anyone else? Good evening, sir. Good evening. This is Pooja here. Yes. मैम हाँ आप जी कौन सर, से थैंक स्कूल यू. कौन से सिटी से हैं, कुछ बताएंगे आप थोड़ा सा? हाँ जी सर, आई एम फ्रॉम कैम्ब्रिज इनोवेटिव स्कूल जलंधर. ओके. हाँ जी सर. Sir, I really enjoyed the session last time also. I joined from last time only, the career counseling one. आएगा यार. And for this one also, खा I लो requested you. थोड़ा सा खा लो. क्या मंगाना चाहती है ये बताओ. Somebody's mic is on. प्लीज अपना माइक को ऑफ कर दें. बाकी लोग. यस मैम बोलिए प्लीज, आप बोलिए. Sir, I want to get more information regarding that. You were saying that progression and tracking from यस 6th मैम. to 8th grade यस मैम. regarding the career. So, can you explain me more in detail मैम how we can? ओके, नॉट प्रॉब्लम. हम ना अभी मैं जैसे कि 3-4 स्कूल हैं जिसमें मैं मंथली बेसिस पे जाता हूँ फॉर मेंटरिंग पर्पजेस. तो मैं उनके लिए एक्सेल्स बनाता हूँ कि हम कैसे, जैसे हम करियर से रिलेटेड चीजें का एक्सेल करते हैं, अभी हम करियर कौशल बोध का भी बना रहे हैं. तो मैं क्या करूंगा अभी इस बार, अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड चाहिए तो मैं अभी आपको आज सेशन के बाद ही आपको शेयर कर दूंगा. अगर कौशल बोध से रिलेटेड चाहिए तो हम लोग एक्सेल बना रहे हैं कैसे हम बच्चों को ट्रैक करते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. तो इट विल हेल्प यू. मैं 3 साल से, जैसे गाजियाबाद का एक स्कूल है वहां में जाता हूँ, तो मेरे पास 3 साल से किस बच्चे ने कौन सा फॉर्म भरा, उसका क्या रिजल्ट आया, पूरी ट्रैकिंग करके हमने रखा है. कौन बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट कराया, एप्टीट्यूड टेस्ट कराने में उसने कौन कौन से फॉर्म भरे, उस फॉर्म में क्या क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, क्या क्या उसका रिजल्ट आया, किस कॉलेज में जाके उसने एडमिशन लिया, ये सारा हम ट्रैक करते हैं. Very nice. Very nice.
तो I will be glad, sir, that you will share with us yes, also, certainly because I will share. your guidance is helping क्योंकि a उसमें lot. बच्चे का पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं नाम वगैरह हटा के मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है? सर ये आप ग्रुप में ही शेयर करेंगे? मैं कर दूंगा, जिसको भी चाहिए मैं कर दूंगा, एटलीस्ट आपको एक प्रोफार्मा मिल जाएगा कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है? ठीक है, Yes. थैंक यू सर। थैंक यू मैम, Thank थैंक यू वेरी मच। एनीवन एल्स? नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं वीरेंद्र कुमार केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन कसौली से हूँ। थैंक यू और सर। सर मेरे लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है या अच्छा है मेरे हिसाब से कि इससे एक नजरिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू सेट हो जाता है। जैसे जितने प्रिसाइज वे में आप बताते हैं और हर एक पॉइंट आप कवर करते हैं कि हमें करना क्या है या किस माइंडसेट से हमें चीजों को टैकल करना है या आगे कैरी ऑन करना है। तो बहुत ज्यादा इन डीप ना जाते हुए भी एक आइडिया हमारा सेट हो जाता है, अगर हमारी एक परसेप्शन बन जाती है तो उसके बाद हम आगे भी खुद से भी कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू साधुवाद वेरी सर। मच। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पिछले सेशन में भी, इस सेशन में भी आपके स्कूलों में जो पीएम श्री स्कूल है तो उनमें कुछ फंड जी आए थे सर। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो करीब 10-12 स्कूलों के साथ मैंने काम किया था, ठीक है? जी 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 और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए जी बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ कि देखा है मैंने, बच्चों का पेरेंट्स का सेशन किया है, बच्चों का सेशन किया है, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी आप लोग को सपोर्ट कर रही है इन सब चीजों में थ्रू फंडिंग एंड ऑल, तो बिल्कुल गुड, बिल्कुल सर। अच्छा काम। हाँ जी सर। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू नमस्कार सर, जी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप हमने आज के पर्पज को अचीव किया होगा। मेरी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मैं आप लोगों से कि फीडबैक को वेट करूंगा। अगर आप लोग जिस भी ग्रुप में से आपको मिला है लिंक, आप वहां शेयर कर दें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।